Good morning, dear students. Now we are going to start inflammation. This is the second part of acute inflammation. Earlier, we have covered basics of inflammation, whereupon we have seen that inflammation is defined as the local response of living mammalian tissue to injury due to any agent. It is a body defense reaction in order to eliminate or limit the spread of injurious agent, followed by removal of the necrosed cells. And after that, we have also seen various agents which cause the inflammation. 5 categories we have seen, and then we have seen the signs of inflammation like rubor, redness, tumor, swelling, color, heat, dolor, pain. And fifth, we have seen the functiolessia, means loss of function. This was suggested by Virchow, and the earlier 4 were suggested by रोमन राइटर्स सेल्सस इन 1 AD, मतलब आज से करीब 1900 साल पहले इन्होंने ये सुझाव दिया था. दैट वी हैव सीन. आफ्टर दैट we divided inflammation into 2 parts: acute inflammation and acute inflammation and chronic inflammation, right? And there we have seen that acute inflammation was divided in for study point of view, divided it into 2 categories, that is vascular events in the vascular events which take place in the acute inflammation, and second was cellular events. So in the first lecture we have covered vascular events, where we have seen how the blood vessels play important role in inflammation, and we have learnt there that the immune response is initiated before the initiation of the inflammatory response. Means all the cells which are involved in the immune cells which are involved in or activated, they are stimulated first, and inflammatory response is starts after that. That we have seen. Then we have seen among the vascular events alterations in the microvasculature. Then we have seen that this was divided into the hemodynamic changes and changes in the दिस वास्कुलर परमिएबिलिटी. ये 2 चीज़ें जो है हमने डिस्कस कर लिया कि किस प्रकार से हाइड्रोडायनेमिक जो चेंजेस हैं, ठीक है, उसके अंदर हमने उसके 4 स्टेप थे. कौन कौन से थे? जैसे ट्रांजिएंट वैसो कंस्ट्रिक्शन था, फिर पर्सिस्टेंट प्रोग्रेसिव वैसोडाइलेशन था. प्रोग्रेसिव वैसोडाइलेशन के बाद लोकल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है रिजल्ट होता था ट्रांसुडेशन ऑफ फ्लूइड में, जो अंदर का फ्लूइड था वो बाहर चला जाता था, ठीक है, इन द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस. और फिर उसके बाद हमने ये स्लोइंग या स्टेसिस ऑफ माइक्रो सर्कुलेशन देखा था, जो कि फॉलो होता है इसके बाय इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ आरबीसी का कंसंट्रेशन उसके अंदर बढ़ जाता है, और फिर क्या है, उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है, और फिर स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है. तो अल्टीमेटली इसमें जो ध्यान देने की बात है कि आर्टेरियोल्स, उधर से जो ब्लड आ रहा है, ठीक है, बीच में कैपिलरीज आती हैं, और लास्ट के अंदर क्या आता है, वेन्यूल्स आते हैं. तो सबसे पहले जो स्वेलिंग आती है वेन्यूल साइड में आएगी, ठीक है. दूसरी बात, आप अपना हाथ इस तरीके से रखें कि अंगूठा जोड़ें और चारों फिंगर से फिंगर जोड़ें. आप जोड़ सकते हैं अभी, ठीक है, और अंगूठा जो है जोड़ लें. अब आप देखिए, ये जो आपकी फिंगर्स हैं, इसको इकट्ठा नजदीक लाने का प्रयास करें. आपकी जो फिंगर्स होंगी वो क्या होंगी, दे विल बिहेव लाइक कैपिलरीज. जो आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा उसको आप इमेजिन कीजिए, लास्ट लेक्चर में अपन ने जो डायग्राम देखा था,
लेफ्ट हैंड साइड जो है आर्टेरियल्स, राइट हैंड साइड जो आपका है वो वेन्यूल बन जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपने देखा था, एक नॉर्मल डायग्राम देखा था इन द फर्स्ट लेक्चर, जिसके अंदर क्या होता था कि लेफ्ट हैंड साइड से ब्लड आ रहा था, राइट हैंड साइड जा रहा था। इट मीन्स आर्टेरियल से ब्लड आ रहा था कैपिलरी के माध्यम से होते हुए, फाइनली वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा से वेन्यूल्स के माध्यम से हार्ट की तरफ जाना शुरू कर रहा था। तो इस जो जंक्शन है ये, इसको बोलते हैं माइक्रोवास्कुलेचर। इन तीनों को मिला के हम बोल देते हैं माइक्रोवास्कुलेचर। तो इस माइक्रोवास्कुलेचर में क्या है, swelling occurs because the density of the density कहिए या viscosity of the blood has increased, ultimately density has also increased, so it exerts pressure on the vessels. So this we have seen in the first lecture. Then we have seen the लेविस एक्सपेरिमेंट कि लेविस ने जो ट्रिपल रेस्पॉन्स था, ठीक है, वो इसमें भी डायग्राम सही नहीं आया है। सो यू कैन सर्च ऑन इंटरनेट फॉर द करेक्ट डायग्राम लेविस एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या ट्रिपल रेस्पॉन्स होता है। ये इसमें सिर्फ इतना है कि जैसे बाजू है आपकी, आर्म है, फोर आर्म, वहां पर अगर स्ट्रोकिंग हो जाए, पेंसिल अगर लग जाए वहां पे, तो क्या क्या आएगा इस डायग्राम के माध्यम से वही दिखाया गया है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या रेड लाइन अपीयर होती है विद इन ए फ्यू सेकेंड्स, उसके बाद में फ्लेयर जो ब्राइट रेडिश अपीयरेंस है वो आ जाता है, और थर्ड होता है व्हील, द स्वेलिंग और ओडेमा, ठीक है। ओडेमा क्या होता है, वाटर लॉगिंग। इसको कह सकते हो कि जो सेल्स हैं वो पानी में डूब गई हैं, साधारण भाषा में आप ऐसा कह सकते हैं। हम कहते हैं कि सेल्स के अंदर वाटर होता है, 70% वाटर है हर जगह, लेकिन जब जरूरत से ज्यादा वाटर इकट्ठा हो जाएगा चारों तरफ तो उसको वाटर लॉगिंग कह देंगे और उसको ओडेमा कहेंगे, ठीक है। तो दैट वी हैव सीन। उसके बाद हमने जो डील किया था अल्टर्ड वास्कुलर परमेबिलिटी को देखा था। उसके पैथोजेनेसिस में जो है वी हैव सीन द आउटवर्ड मूवमेंट एंड इनवर्ड मूवमेंट जो होता है फोर्स का, और ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। तो वी हैव सीन द एक्सचेंज ऑफ द फ्लूइड्स, बट ड्यूरिंग इंजरी दीज प्रेशस चेंजेस, ठीक है। तो आफ्टर दैट, ये पिछले लेक्चर का ही है, मैं जस्ट आपको जोड़ने के लिए ये लेके आया हूँ, एक स्लाइड रखी हुई है पिछले लेक्चर की, ये लास्ट है। द मैकेनिज्म ऑफ इंक्रीज्ड वास्कुलर परमिबिलिटी किस प्रकार से आपने देखा था, आपने देखा था कि इसके अंदर जो इसका मैकेनिज्म संभव हो सकता है, अगर तो एंडोथेलियल सेल कंट्रैक्शन होगा तो वेन्यूल्स जो है उस पर इसका असर पड़ेगा। सेकंड कॉलम है माइक्रोवास्कुलेचर, इसमें आपके वेन्यूल्स आते हैं, आर्टेरियल्स आते हैं और कैपिलरीज आती हैं। ये वही चीज है, अगर आप अंगूठे से अंगूठा मिलाएं और फिंगर से फिंगर मिलाएं और हाथ को स्ट्रेच कर लें ऐसे, लेफ्ट साइड आपके वो हो जाएंगे, क्या कहते हैं, आर्टरीज, और राइट साइड हो जाएंगे वेन्यूल्स। तो सिंपल सा, और हाथ को आप चौड़ा करने की कोशिश करो, फिंगर नजदीक मत लाओ, और बीच में मान लो हाथ में एक बहुत बड़ी बॉल है आपके और ऐसा जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो बिल्कुल वैसा ही नक्शा ये इसका बन जाता है, सॉरी डायग्राम बन जाता है। तो अगर इपिथेलियल सेल कंट्रैक्ट होंगी, यहाँ अब आपको ये समझना जरूरी है, ये एक बार मैं आपको नेक्स्ट यहाँ एक डायग्राम है उस पर लेके चलता हूँ। ये देखिए, ये नॉर्मल आप ये स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी समझाया था। इसमें आपको क्या बताया था कि यहाँ एक और लेयर स्मूथ मसल्स की नहीं शो कर रखी, और जो आपको ये पिंक लाइनिंग, डार्क पिंक सी लाइन दिख रही है, ये किसकी है, दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इसके बाहर स्मूथ मसल्स होती हैं। और तो आउटर, आप ऐसा कहिए कि आउटर में स्मूथ मसल है, उसके बाद आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन आ गया, और उसके ऊपर एंडोथेलियल सेल्स की लाइनिंग होती है। ये नॉर्मली ये स्ट्रक्चर होता है एक ब्लड वेसल का, और इसके अंदर से ब्लड फ्लो करता है। अब बात हम कर रहे हैं कि जब इंजरी हो जाती है तब क्या होता है। तो अब मैं वापस आपको लेके चलता हूँ, क्योंकि हमने वास्कुलर इवेंट्स, अभी ये जो हमारे हैं सेलुलर इवेंट के जो हम कहेंगे पॉइंट्स हैं, लेकिन जो पिछला लेक्चर था उसका जस्ट कनेक्ट करने के लिए वो पांचों पॉइंट मैं आपको, परमेबिलिटी कैसे बढ़ती है एक बार दोहरा रहा हूँ। तो एंडोथेलियल सेल जब कॉन्ट्रैक्ट होंगी, आपने डायग्राम देख लिया, दो एंडोथेलियल सेल, जो एंडोथेलियम है एंडोथेलियल सेल्स का बना हुआ है, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे इनके बीच में गैप आएगा,
जब ये गैप आएगा तो पैथोजेनेसिस की परिस्थिति बनेगी वेन्यूल्स में, ठीक है। ये 15 से 30 मिनट लग सकते हैं इसमें। और ये पैथोजेनेसिस जो मीडिएट होता है, मतलब इसमें हिस्टामिन्स और ब्रेडिकाइनिन जो है इनका रोल रहता है इसके अंदर। जो माइल्ड थर्मल इंजरी है वो इस प्रकार की कॉन्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल है। फिर हमने रिट्रैक्शन देखा था कि एंडोथेलियल सेल रिट्रैक्शन, वापस वो रेस्ट पर आती हैं। तो नेचुरल कॉन्ट्रैक्शन वेन्यूल्स में हुआ था, तो रिट्रैक्शन भी वेन्यूल्स पे आएगा। तब आपने देखा था, मैंने आपको सिंगल डायग्राम के माध्यम से समझाया था कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो इनके बीच में गैप आ जाता है, लेकिन जब वो वापस जुड़ने लगते हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब भी फ्लूइड बाहर आता है। और जब वो दोबारा से रिट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, तो मान लो दो चीजें नजदीक आएंगी, उनके बीच में जो फ्लूइड होगा वो बाहर आ जाएगा। तो समवट डिलेड होता है, 4 से 6 घंटे का समय लगता है, प्रोलॉन्ग्ड है फॉर 24 आवर्स भी हो सकता है। और आपने ये देखा था जब ये रिट्रैक्शन होता है तो ऐसे में इंटरल्यूकिन 1 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा मीडिएट करते हैं पैथोजेनेसिस को। ये स्थिति जो है इन विट्रो पॉसिबल है, मतलब लैब के अंदर, इन विट्रो मीन्स लैब। देन डायरेक्ट एंडोथेलियल सेल इंजरी, अब ये इसमें आपको बताया भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है फिर रिट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन अब क्या है, एक ऐसी इंजरी भी हो सकती है जिसके अंदर डायरेक्ट इतनी ज्यादा कि सीधा जाकर उसने क्या किया, स्मूथ मसल्स को भी ब्रेक कर दिया, उसने बेसमेंट मेम्ब्रेन को भी तोड़ दिया, और उसके बाद जाकर इतनी गहरी चोट थी कि उसने जाकर एंडोथेलियम को भी चोट कर दी। तो डायरेक्ट जो एंडोथेलियम सेल्स हैं वो ब्रेक हो गई। अब आपको ध्यान आ रहा होगा लास्ट लेक्चर में कि मैंने एक आपको ऐसा डायग्राम दिखाया था जिसके अंदर डायरेक्ट हिट होता है। तो अब इसमें क्या है, जब यहाँ तक हिट होता है तो कहाँ कहाँ होता है, ये आर्टेरियल्स भी आ जाती हैं, वेन्यूल्स भी आ जाती हैं, कैपिलरीज, मतलब पूरा माइक्रोवास्कुलेचर जो है इससे डिस्टर्ब हो जाता है इस इंजरी से। और ये हो सकता है इमीडिएट हो सकता है और प्रोलॉन्ग्ड हो सकता है, मतलब कुछ घंटों से लेकर कुछ दिन का, या डिले हो सकता है 2 से 12 घंटे का, या प्रोलॉन्ग्ड हो सकता है अप टू डेज। इसके अंदर आपने जो देखा था सेल नेक्रोसिस होता है डायरेक्ट, और सेल डिटैच हो जाती हैं एक दूसरे से, तो नेचुरली लीकेज होता है इसके अंदर है। देन मॉडरेट टू सीवियर बर्न्स जो हो गए, मान लो एक कोई जल गया, किसी का हाथ जल गया, बाजू जल गया, तो सीधा जाकर ये एंडोथेलियल सेल्स को करता है। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है। फिर रेडिएशन इंजरी है वो भी ऐसा कर सकती है। तो हमने इस मैकेनिज्म के माध्यम से ये जाना था कि ये जो पैथोजेनेसिस है, ऐसी जो इंजरी है उसका सेल नेक्रोसिस और डिटैचमेंट होता है, ठीक है। देन कुल मिलाकर इन परिस्थितियों में तीनों में आप एक चीज समझो कि लीकेज, मतलब एक होल मिल रहा है ब्लड बाहर जाने के लिए, इसी को बोलेंगे ना परमिएबिलिटी में चेंज आ गया। फिर एक चौथी स्थिति आती है कि ल्यूकोसाइट मीडिएटेड इंजरी ऑफ इंडोथीलियल, या इंडोथीलियम कह लो या इंडोथीलियल सेल्स कह लो। तो ऐसे में वेन्यूल्स और कैपिलरीज जो हैं वो इसमें प्रभावित होती हैं, और ये डिलेड हो सकता है, मतलब थोड़े समय बाद, या प्रोलॉन्ग्ड काफी समय बाद। इसमें जो पैथोजेनेसिस है उसमें ल्यूकोसाइट एक्टिवेशन है, ल्यूकोसाइट एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है, एंड दे विल लीड टू द काज ऑफ द इंजरी। और पल्मोनरी वेन्यूल्स और कैपिलरी जिसका बेस्ट एग्जांपल है। और आफ्टर दैट यू हैव सीन की एक और टर्म हमने यूज किया था, नियोवास्कुलराइजेशन। तो इसमें सीधा सा नियो का मतलब नया, वास्कुलराइजेशन मतलब वास्कुलर बंडल्स के बढ़ने की प्रक्रिया, ठीक है। तो उसमें जो था आपने देखा था, जो मेन बात थी लीकीनेस थी, ठीक है। देखो नए वास्कुलर बंडल कब बनेंगे, जिस दिशा में ब्लड फ्लो कर रहा है उस दिशा में नया ब्लड वेसल बन जाए। तो पहली बात आ गई लीकीनेस, दूसरा हो गया नियोवास्कुलराइजेशन की नए वास्कुलर जो बंडल्स हैं वो बन रहे हैं। ये किससे बनते हैं, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर VEGF, आपको बताया था ना, ये देखिए ऑल लेवल्स पर है VEGF, जिसको हमने कहा था वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर VEGF। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिपेयर, जब रिपेयर हो रहा होगा, जब कोई इंजरी आएगी रिपेयरिंग, या फिर कैंसर है किसी को, ठीक है, तो ट्यूमर है, ट्यूमर के अंदर क्या है, सेल्स अनकंट्रोल्ड होती हैं, दे कीप ऑन डिवाइडिंग। तो ऐसे में वहां नियोवास्कुलेचर की जरूरत है कि उन सेल्स को आवश्यकता है ब्लड की। तो ऐसे में क्या है, लीकीनेस वहां रहेगी,
और एंजियोजेनेसिस आपका शुरू हो जाएगा, निर्माण शुरू हो जाएगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ VEGF। तो जब हीलिंग हो रही होती है तब भी ये होता है, ट्यूमर्स में भी होता है। तो ये जानकारियां आपने, जो इसका फर्स्ट पार्ट था एक्यूट इन्फ्लेमेशन का, जिसके अंदर आपने देखा कि जो वास्कुलर परमेबिलिटी बढ़ जाती है, ये उसकी एक समरी है। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट के ऊपर। तो हमने वास्कुलर इवेंट को एक बार दोबारा से दोहरा लिया, इसमें हमारे 10-15 मिनट लग गए, लेकिन अभी आपको क्लियर हो जाएगा भी, ये ठीक किया हमने। तो सेलुलर जो इवेंट्स हैं, सेलुलर फेज ऑफ इन्फ्लेमेशन जो है, इसके दो प्रोसेसेस होंगे। नंबर 1 इज एक्सुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स। जो ल्यूकोसाइट्स हैं वो बाहर आ रहे हैं, एक्सुडेशन, ठीक है, और फेगोसाइटोसिस। उसके बाद में जो कोई वहाँ एंटीजन है या माइक्रोब है, उसको ये ल्यूकोसाइट अपने अंदर ले लेगा, ठीक है, निगल जाएगा इसको, और इसी के साथ जो सेलुलर इवेंट खत्म हो जाएंगे। और फाइनली हम देखेंगे कि इसका आउटकम क्या है, ठीक है। नाउ एक्सुडेशन जो है, इसके अंदर एक्सुडेशन के अंदर 4 स्टेप आते हैं ल्यूकोसाइट के। चेंजेस इन द फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जितने भी ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं ब्लड के, उनके अंदर चेंज आना, फिर उनका रोलिंग एंड एडेशन के संबंध में चेंज आना, इमिग्रेशन और कीमोटैक्सिस। कुल मिलाकर देखिए, ये इस डायग्राम के अंदर आपको मैं थोड़ा एनलार्ज करता हूँ इस डायग्राम को। ये देखिए, ये आपको नॉर्मल ब्लड वेसल दिखाया, यहाँ आपको दिखाया मार्जिनेशन एंड पेवमेंटिंग, ठीक है। देखिए, इसमें फर्स्ट डायग्राम में ए और बी में ये अंतर है कि बी में आपका जो प्लाज्मा होती है ना, वो थिन हो जाती है, क्योंकि वो प्लाज्मा पास आउट हो रही है आगे जो होल है उसके माध्यम से। अब इसकी वजह से शिफ्टिंग हो जाएगी मार्जिन की तरफ, बाकी जितनी सेल्स हैं वो शिफ्ट करने की कोशिश करेंगी मार्जिन की तरफ, तो वो अपना रास्ता बना लेंगी, पेवमेंटिंग हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, ये रोल करते जाएंगे, इसके साथ साथ क्या बोलते हैं आपका एंडोथेलियम के साथ साथ, ठीक है, और उससे एडेशन होगा इनका। वो एडेशन होने के लिए आवश्यकता पड़ती है सिलेक्टिन और इंटेग्रिन की, वो हम थोड़ा आगे चल के मैं इसका डिटेल देता हूँ आपको भी। और फिर अंत में क्या होता है, इमिग्रेशन। जब कोई किसी दूसरे देश में जाते हैं तो कह देते हैं इमिग्रेट हो गया ये, ठीक है। यहाँ दूसरा देश क्या है, ब्लड वेसल के अंदर से ल्यूकोसाइट बाहर जा रहा है, उसने कोई काम करना है, वो काम है इसकी रक्षा करना। जो आपने शुरू में मैंने बताया था भी, जैसे ही इन्फ्लेमेशन शुरू होता है उससे पहले इम्यून रिस्पॉन्स शुरू हो जाता है, जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली है ना, वो एक्टिवेट हो जाती है, क्योंकि इसकी जरूरत है। चोट लगी है, ऐसे में बाहर से भी कुछ आएगा, कुछ ये ब्रेक होगा, नेक्रोसिस होगा, तो ऐसे में बहुत आवश्यकता है कि जो भी एंटीजेनिक चीज है जिससे नुकसान हो सकता है उसको ये लोग जो है खत्म करें। तो इमिग्रेशन होगा और डाया आपके पेडिएसिस, ये क्या है, ये जब इस टर्म को मैं आगे के एक्सप्लेन करता हूँ। ये सिर्फ इतना है कि जब ल्यूकोसाइट निकल गया तो पीछे रास्ता बन गया, उसके माध्यम से ब्लड और उसके क्या कहेंगे आप, बाकी कंपोनेंट्स हैं वो भी प्रयास करते हैं भी हम भी निकल जाते हैं। अब इससे पूर्व थोड़ा सा मैं आपसे इसको शुरू करने से पहले जो फर्स्ट पॉइंट है थोड़ा सा रिकॉल करवा दूं आपको, चेंजेस इन द फॉर्म्ड एलिमेंट्स। इस स्लाइड से नहीं, मैं कोई पीछे की जो हमारी स्लाइड है, ठीक है, आपका पेज नंबर 4 और 5 पर आप देख लेना। आपको बताया गया था इसके बारे में, इम्यून सिस्टम की जो सेल्स हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं और मोनोसाइट्स होते हैं। लिम्फोसाइट्स लगभग 20 से 50% होते हैं, मोनोसाइट्स 1 से 5% होते हैं। मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स हैं, वो लगभग 0 से 1% होती हैं। जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो 40 से 75% तक हो सकते हैं, और इजिनोफिल 1 से 6% हो सकते हैं। तो ये 5 प्रकार के जो इम्यून सेल्स हैं। लेकिन इसकी थोड़ी सी डिटेल आपको वहां मैंने उस टेबल के अंदर भी दी हुई है, आप अपने नोट्स में रेफर करें, लेकिन थोड़ा सा समझ करा दूं। जो लिम्फोसाइट्स हैं ये मास्टर ऑफ इम्यून सिस्टम कहलाते हैं, ठीक है। तो इनमें बी सेल्स और आपके टी सेल्स होती हैं। बी सेल्स जो हैं, जो लिम्फोसाइट्स हैं, इसमें बी सेल्स और टी सेल्स होती हैं। जो बी सेल्स हैं वो 10 से 15% होंगी,
और टी सेल्स होंगी 75 से 80%। अब बी सेल क्या होती है, ये प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती हैं। और प्लाज्मा सेल्स का क्या काम है, ये सीक्रेट करती हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जो एंटीबॉडी है ना उनको सीक्रेट करते हैं। वैसे सीरम में आपका जो आईजीजी है वो वैसे ही रहता है, मौजूद रहता है। देन उसके बाद आपको मैंने बताया था कि जो टी सेल्स हैं जो 75 से 80% है लिम्फोसाइट्स का, ठीक है, ये सेल मेडिएटेड इम्यून रिएक्शन को इंड्यूस करते हैं। ठीक है, ये होते हैं 3 प्रकार के, टी हेल्पर सेल, टी सप्रेसर सेल्स और एनके सेल्स। जो टी हेल्पर सेल्स होती हैं इनको हम CD4 प्लस सेल्स बोलते हैं, लगभग 60% होती हैं टी सेल्स का। ठीक है, ये एनहांस करती हैं इम्यून रिएक्शन को बाय इलेबोरेटिंग साइटोकाइंस। ठीक है, साइटोकाइंस को इलेबोरेट करके, ठीक है, उनके प्रभाव के अंदर ये इम्यून रिस्पॉन्स रिएक्शन को जो है बढ़ा देती हैं। फिर जो टी सप्रेसर सेल्स हैं इसका उल्टा काम करती हैं, इनको हम CD8 प्लस सेल्स बोलते हैं। ये 30% होती हैं, ये सप्रेस करती हैं इम्यून रिएक्शन को, बट आर डायरेक्टली साइटोटॉक्सिक टू दी एंटीजन। लेकिन एंटीजन को डायरेक्टली जो है साइटोटॉक्सिक हैं। फिर आपका आ गया थर्ड वाला, वो एनके सेल्स, जो कि 10 से 15% है, पार्ट ऑफ नेचुरल और इनेट इम्यूनिटी, दे काज एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। ठीक है, तो ये अब मैंने जैसे आपको लिम्फोसाइट्स बता दिए कि 2 प्रकार के, बी सेल और टी सेल, और टी सेल आपके हो गए टी हेल्पर सेल, टी सप्रेसर सेल और एनके सेल्स। अब दूसरा जो टाइप है इम्यून सेल्स का, दैट इज मोनोसाइट्स। मोनोसाइट जो है 1 से 5% होते हैं, इनका काम है एंटीजन को रिकॉग्नाइज करना, फैगोसाइटोसिस में हिस्सा लेना, ठीक है, फिर सिक्रेटरी फंक्शंस में हिस्सा लेना, और एंटीजन जो है प्रेजेंटेशन में भी इनका रोल है कि जो बाहर से आया उसको किस फॉर्म के अंदर एंटीबॉडी को प्रेजेंट किया जाता है। देन मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स, वो जैसे बताया 0 से 1% होते हैं, ये एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है, और वुंड हीलिंग जो होता है उसमें मदद करते हैं। और फिर आपका वो था न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, वो आपके थे 40 से 75%, जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहलाते हैं ये न्यूट्रोफिल्स, जो अभी अब हम देखेंगे ना जब ये लीकेज होगा तो इनका रोल आपको वहां स्पष्ट होगा। ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अगर माइक्रोब्स का इन्फेक्शन है उस केस के अंदर, एंड अदर स्मॉल एंटीजन्स, या कोई दूसरा एंटीजन है छोटा मोटा ऐसे में। ठीक है, नाउ इजिनोफिल्स जो आपके हैं वो 1 से 6% होते हैं, ये एलर्जिक रिएक्शंस जब होते हैं तब एक्टिवेट हो जाते हैं, या हेलेंथियसिस मतलब वॉर्म वगैरह जो होते हैं, वॉर्मिंग वगैरह, उसमें ये एक्टिवेट हो जाते हैं। चलिए, ये आपको जो मैंने इम्यून सिस्टम के बारे में बताया, ये लास्ट लेक्चर के अंदर जो आपको नोट्स दिए 4 और 5 नंबर पेज पर, ये टेबल 2 में चला गया, आप उसको रेफर कर लीजिए, इट विल बी क्लियर टू यू। अब हम आते हैं चेंजेस इन द फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो कंटिन्यूटी करने के लिए हम एक्सुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट देख रहे हैं इस समय कि ल्यूकोसाइट कैसे बाहर जाता है। ठीक है, तो इसके लिए पहला स्टेप जो आपको बताया था, 4 स्टेप है ना इसके, तो चेंजेज इन द फॉर्म्ड एलिमेंट। अब आपकी सुविधा के लिए ल्यूकोसाइट के हमने 2 हाथ और पांव दिखा दिए। ठीक है, किस तरीके से ये बाहर जाएगा, थोड़ा आपको इंटरेस्टिंग लगे और आसानी से समझ में आए। तो अब इसमें है क्या, चेंजेज इन द फॉर्म्ड एलिमेंट्स। In the early stage of inflammation, the rate of flow of blood is increased due to vasodilation, but subsequently there is slowing, आप पीछे पढ़ के आए हो, और stasis of the blood stream। ये जो stasis है, changes in the normal axial flow of the blood in the microcirculation take place। ठीक है, इससे क्या, द नॉर्मल एक्सियल फ्लो कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल स्ट्रीम हो गया ऑफ द सेल्स कंप्राइज्ड बाय, इसमें क्या है, ल्यूकोसाइट्स हैं और आरबीसी हैं, एंड पेरिफेरल सेल फ्री लेयर ऑफ प्लाज्मा क्लोज टू वेसल वॉल। अभी आपको बताया था ना शुरू में कि आपके ये जो हैं लिम्फोसाइट हैं उसमें बी सेल्स होती हैं, उस वो क्या है, प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती हैं। इनका क्या रोल है, इनका रोल है इम्यूनोग्लोबुलिन्स को सीक्रेट करना। ठीक है, तो ये इसका इस प्रकार से कंपोजिशन रहा। अब आपको समझ में आया हो कि ब्लड वेसल जो आपका एंडोथेलियल सेल्स के आगे जो ऊपर लेयर है वो किसकी है, वो प्लाज्मा की है। देन इसमें जो नेक्स्ट है, ड्यू टू स्लोइंग एंड स्टेसिस क्या होगा, द सेंट्रल स्ट्रीम ऑफ सेल वाइडन,
जब स्लो हो गया, आपने स्वेलिंग देखी थी ना, तो ये सब इकट्ठे वहां जमा होने लगे तो क्या होगा, सेंट्रल स्टीम वाइड हो जाएगी, चौड़ी हो जाएगी, या आप कहें चौड़ी तो नहीं कह सकते क्योंकि एक पाइप है ना, तो ये मतलब यू कैन से कि चारों दिशाओं में ये फैल जाएगी। एंड पेरिफेरल प्लाज्मा जोन है जो इम्पोर्टेंट बात है कि जब ये प्रेस होंगे, जब प्रेशर पड़ेगा तो प्लाज्मा का जो जोन है ना वो पतला हो जाएगा, और जहां भी लीकेज है, जहां ये चोट लगी हुई है, जैसे इस ल्यूकोसाइड के हाथ के पास आपको गैप दिख रहा है दो एंडोथेलियल सेल्स के बीच का, तो यहाँ से वो बहुत जो प्लाज्मा मटेरियल है वो इनके माध्यम से बाहर चला जाएगा और नैरो हो जाएगा। इसके नैरो होने से क्या होगा, जो ल्यूकोसाइट है वो उसके मार्जिन मतलब बाउंड्री के नजदीक जाने का प्रयास करेगा, ठीक है, और इसी को मार्जिनेशन कहा गया है। और जो पीछे दूसरी सेल्स हैं वो कोशिश करेंगी इनको फॉलो करने का, उनके पीछे जाने का, उनका रास्ता बन जाएगा, इसको हम कहेंगे पेवमेंटिंग। तो ये जो दिस फिनोमिना इज नोन एज मार्जिनेशन, इसी को मार्जिनेशन कहा गया। ड्यू टू स्लोइंग एंड स्टेसिस द सेंट्रल स्टीम ऑफ सेल्स वाइडन एंड पेरिफेरल प्लाज्मा जोन बिकम्स नैरोअर because of loss of plasma by exudation. This phenomena is known as margination. As a result of this redistribution, जो न्यूट्रोफिल्स हैं ऑफ द सेंट्रल कॉलम कम क्लोज टू द वेसल वॉल, वो क्या करेंगे, अब प्लाज्मा जैसे जो है बहुत नैरो हो गया, ठीक है, तो मार्जिनेशन हो गया, तो बाकी जो पीछे आपके रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा न्यूट्रोफिल्स हैं वो भी नजदीक आना उन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है, इसको हमने कहा पेवमेंटिंग। अब हम आते हैं दूसरा स्टेप, आप कहीं इधर उधर ना हो इसलिए मैं थोड़ा सा बता दूं, हम एक्सुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट कर रहे हैं कि ब्लड वेसल से ल्यूकोसाइट बाहर कैसे आता है। इसमें हमने पहला स्टेप चेंजेस इन द फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड कर लिया, अब आएंगे रोलिंग एंड एडेशन, उसके बाद इमिग्रेशन पर चलेंगे और लास्ट है कीमोटैक्सिस। नाउ कम टू दी रोलिंग एंड आपके एडेशन। सिंपल सी बात है, रोलिंग का मतलब है कि वो गोल गोल घूमते जाते हैं, ठीक है, ये देखो, अब ये रोलिंग, अब पहले कैसे था, ऐसे था, इसका हमने, वैसे तो होता नहीं है लेकिन हमने आंखें से बना के इसका ये प्रयास किया है भाई, ये ऐसे चक्कर लगाता है, तो ये देखो ये घूम गया, मतलब ये आगे बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है, तो ये रोल कर रहा है। और एडेशन, और वो तो हाथों से उसने पकड़ दिख रहा है ना आपको, ल्यूकोसाइट ने पकड़ रखा है उसको, तो ये इसको चिपका हुआ है, तो सिंपल। तो पेरिफेरी समझे ना, कोई भी पाइप होती है ना, उस पाइप के अंदर की जो चीज होती है उसको पेरिफेरी बोला जाता है, ठीक है, और वैसे हमारे शरीर में पेरिफेरल जो बोलते हैं, जो हमारे मतलब दूर मीन्स अवे, तो यहाँ उसके ल्यूमेन जो सेंटर है उससे जो दूर है, ठीक है, तो पेरिफेरली मार्जिनेटेड एंड पेवमेंटेड, पहले स्टेप में उनका मार्जिनेशन हुआ था, पेवमेंटेड हो गए थे, मतलब न्यूट्रोफिल्स उनका रास्ता बन गया था, वो नजदीक जाने लगे थे एंडोथेलियल सेल्स के। एंड पेवमेंटेड न्यूट्रोफिल स्लोली रोल ओवर द एंडोथेलियल सेल्स, अब वो उसके ऊपर रोल करेंगे, ठीक है, सेल लाइनिंग द वेसल वॉल, जिसको हम कह देते हैं रोलिंग फेज, ठीक है। दिस इज फॉलोड बाय ट्रांजिएंट बॉन्ड बिटवीन द ल्यूकोसाइट एंड एंडोथेलियल सेल्स बिकम फर्मर। अब मैंने आपको ये बताया था कि रोलिंग के बाद एडेशन बताया था आपको चिपकना, और मैंने कहा था आपको सिलेक्टिन्स और इंटेग्रिन्स का रोल जो है वहां बताएंगे, ठीक है। तो वो ये जो हो रहा है किस वजह से हो रहा है, द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स ब्रिंग अबाउट रोलिंग एंड एडेशन। अब यहाँ आप एक सिंपल सा फिनोमिना समझ लो, हमारे नजदीक कौन आएगा जिसको हम सिलेक्ट करेंगे, आई बात समझ में, और हमसे घुल-मिल कौन जाएगा जिसको हम अपने साथ इंटीग्रेट करना चाहेंगे, जिसको हम जोड़ना चाहेंगे, तो यही बात यहाँ लागू होती है, ठीक है। सिलेक्टिन्स वो मॉलिक्यूल हैं जो ल्यूकोसाइट्स के मॉलिक्यूल की पहचान करते हैं, ठीक है, और उनको कहते हैं जी यस ये बंदा अपना। और इंटेग्रिन्स क्या है, वो रेस्पॉन्स में हाथ निकालते हैं, ये हाथ मिलाइए, ठीक है, तो इनको नजदीक आने का मौका मिला। और तीसरा आ गया आपका इम्यूनोग्लोबुलिन जीन सुपर फैमिली एडेशन मॉलिक्यूल। तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन जीन सुपर फैमिली कहाँ है, ये प्लाज्मा के जो अंदर है वहां है, जो बारीक लेयर और बहुत ही नैरो हो चुकी है वहां पे। अब थोड़ा सा अगर इंटीग्रेट आपको
सिलेक्टिन्स के बारे में बताऊं कि ये क्या है। सिलेक्टिन्स आर एक्सप्रेस्ड ऑन सरफेस ऑफ एक्टिवेटेड एंडोथेलियल सेल। जो एंडोथेलियल सेल्स हैं जिसके ऊपर आपने को ये ल्यूकोसाइट लेटा हुआ है ना, इसके नीचे जो सेल्स हैं ये एंडोथेलियल सेल्स हैं और बीच में आपने को गैप दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, इसके सरफेस के ऊपर एक्टिवेटेड एंडोथेल्स विच रिकॉग्नाइज, मैंने क्या कहा, पहचान करना कि किसे हम चाहें कि हमारे नजदीक आए, हम सेलेक्ट करते हैं। तो ये भी पहचान करते हैं किसकी, न्यूट्रोफिल्स की। द मोस्ट इंपोर्टेंट जो इसके अंदर, आई रिपीट, सिलेक्टिन्स आर एक्सप्रेस्ड on the surface of activated endothelial cells which recognize specific carbohydrate group found on the surface of neutrophil। मतलब ये एंडोथेलियल सेल के ऊपर हैं, इन्होंने पहचान करनी है कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल की, ठीक है, जो कि ल्यूकोसाइट्स के ऊपर है। इसने पहचान करके फिर इंटेग्रिन्स ने हाथ मिला लेना, भाई आप तो हमारे बंधु आइए, ठीक है। सो इसमें अब एग्जांपल लें कि द मोस्ट इंपोर्टेंट जो सरफेस पर पाया जाने वाला है, दैट इज द आपका दिस दिस इज नोन एज द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ विच इज द एस लेविस एक्स मॉलिक्यूल बोलते हैं उसको, जो एंडोथेलियल सेल के सरफेस पर पाया जाता है, ठीक है। वाइल जो पी सिलेक्टिन है, ये क्या प्री फॉर्म्ड है, पहले से बना हुआ है। एक तो होता है ना कि नजदीक ल्यूकोसाइट आ गया, उसको देखकर बना हुआ है एस लेविस एक्स। एक है प्री फॉर्म्ड, और ये स्टोर्ड है एंडोथेलियल सेल्स के अंदर और प्लेटलेट्स के अंदर भी होता है। ये इज इन्वॉल्व इन रोलिंग, ये रोलिंग में मदद करता है। बात समझ में आई। एस लेविस एक्स मॉलिक्यूल पहचान करेगा, ठीक है। और जो पी सिलेक्टिन है वो पहले से मौजूद है, प्लेटलेट्स में भी होता है और एंडोथेलियल सेल्स में भी होता है, स्टोर होता है पहले से, और ये रोलिंग में सहायता करता है। उसके बाद आ जाता है ई सिलेक्टिन, इसको कहेंगे आप सिंथेसाइज्ड बाय साइटोकाइन एक्टिवेटेड एंडोथेलियल सेल्स। जब साइटोकाइंस स्टिमुलेट करेंगे, अब थोड़ा सा यहाँ रिकॉल करें, हमने पिछले चैप्टर में, पिछले लेक्चर में क्या पढ़ के आए थे, हमने पढ़ा था कि इंटरल्यूकिन्स जो होते हैं वो स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। वी स्टडीड ना कि जो आपने वास्कुलर जो परमिबिलिटी पढ़ी थी और जो समरी मैंने आपको दी थी 5, उसके अंदर जो आपका ये स्टेप था ना कॉन्ट्रैक्शन वाला, उसके अंदर ये बात आपको बताई गई थी कि देयर इज ए कॉन्ट्रैक्शन, इनका कॉन्ट्रैक्शन होता है और वहां पर जो आपके हिस्टामिन्स और ब्रेडिकाइनिन्स, और जब रिट्रैक्शन होता है इंटरल्यूकिन्स और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ठीक है, इनकी वजह से पैथोजेनेसिस होता है। तो वही चीज आपने थोड़ी सी यहाँ रिकॉल करनी है, ठीक है। तो चलिए, जो सिलेक्टिन के अंदर आपका जो फर्स्ट वन है एस लेविस एक्स मॉलिक्यूल है, दूसरा मैंने बताया जो रोलिंग में मदद करता है वो है पी सिलेक्टिन, और तीसरा है ई सिलेक्टिन जो सिंथेसाइज होता है साइटोकाइन एक्टिवेटेड एंडोथेलियल सेल्स के, जो साइटोकाइन से एंडोथेलियल सेल एक्टिवेट हो जाती हैं, और ये एसोसिएटेड है विद बोथ रोलिंग एंड एडेशन। अब ध्यान दो आप, फर्स्ट वाला जो एस लेविस एक्स है वो पहचान करता है, दूसरे वाला जो है आपका पी आपका सिलेक्टिन है वो क्या करता है, इसकी रोलिंग में मदद करता है, और तीसरा जो ई सिलेक्टिन है, जब साइटोकाइन एक्टिवेट करेंगे एंडोथेलियल सेल्स को, तब ये क्या करेगा, ये रोलिंग में भी मदद करेगा और एडेशन मतलब उसको चिपकाने में। अब जरा इस डायग्राम के अंदर देखो, ये ल्यूकोसाइट चिपका हुआ है इसके साथ, ठीक है। तो मतलब ये तीनों सिलेक्टिन जो मैंने आपको बताए हैं, एस लेविस एक्स मॉलिक्यूल, दूसरा आपको मैंने बताया आपका पी सिलेक्टिन, और तीसरा बताया ई सिलेक्टिन, ठीक है। तीनों प्ले कर रहे हैं, ठीक है, और एडेशन हो गया। अब इसका एक और है एल सिलेक्टिन एक्सप्रेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स के सरफेस पर होता है ये, ठीक है। जब ये नजदीक आते हैं तो तब उनको जो है इसके माध्यम से एडेशन होती है। इज रेस्पॉन्सिबल फॉर होमिंग ऑफ सर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट्स टू द एंडोथेलियल सेल्स इन लिम्फ नोड्स, ठीक है। और ये जो फिनोमिना ऐसा ही जो है लिम्फ नोड्स के अंदर जब होता है तो वहां उनको वापस लिम्फोसाइट्स के अंदर ले जाने के लिए मदद करता है, क्योंकि वो उनका नॉर्मली उनका ये रेजिडेंस है लिम्फोसाइट्स के अंदर। लिम्फोसाइट्स का
आपके लिम्फ के अंदर जो है नॉर्मल रेजिडेंस होता है। अब चलिए फर्स्ट से सिलेक्टिन से आपको ये समझ में आ गया कि कोई मॉलिक्यूल थे जिन्होंने पहचान करनी थी, कोई ऐसे मॉलिक्यूल थे जिन्होंने उसको रोल करवाना था, तीसरा कोई ऐसा मॉलिक्यूल था जिसने उसको रोल भी करवाना था और चिपकाना भी था, ठीक है, और चौथा एक एल सिलेक्टिन ऐसा था जो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर लिम्फोसाइट्स की होमिंग करता है, उनको वहां पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपकी सिलेक्टिन। अब आ गया आपका सेकंड आ गया इंटेग्रिन्स। इंटेग्रिन्स का मतलब है कि ये सब काम इतना तो हो चुका, अब खाली हाथ ही मिला लेते हैं, ठीक है। किसने हाथ मिलाना? आपके ल्यूकोसाइट ने, किसके साथ? एंडोथेलियम के साथ, ठीक है। और उसके लिए उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलनी है, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन की वजह से या साइटोकाइंस की स्टिमुलेशन में थोड़ा गैप आएगा और ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। नाउ integrins on endothelial cell surface are activated during the process of loose and transient adhesion between endothelial cells and leukocytes. At the same time, the receptors for integrins on neutrophils are also stimulated. और इंटेग्रिन्स जो न्यूट्रोफिल्स के जो सरफेस पर है वो भी एक्टिवेटेड हो गए, तो दोनों एक दूसरे की इज्जत कर रहे हैं तो हाथ मिला लेंगे, हो गया इंटीग्रेशन, एकता होगी दोनों की, ठीक है। दिस प्रोसेस brings about firm adhesion between leukocyte and endothelium. Then come to the third, जो इसका आपका जो मॉलिक्यूल जो रोलिंग और एडेशन को लाने में रोल प्ले करता है वो आपके आते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन जीन सुपर फैमिली एडेशन मॉलिक्यूल, ठीक है। ICAM1 और BCAM1 होते हैं, तो सच एज इंटर सेलुलर एडेशन मॉलिक्यूल ICAM1 और दूसरा हो गया वास्कुलर सेल एडेशन मॉलिक्यूल VCAM1 अलाउ ए टाइटर एडेशन, ठीक है, जोर से चिपका देता है, एंड स्टेबिलाइज द इंटरेक्शन बिटवीन ल्यूकोसाइट एंड एंडोथेलियल सेल्स। ये क्या करता है कि जो इनकी इंटीग्रिटी हुई है, ये जो इकट्ठे हुए हैं, जो इनकी ताकत है, उनको ये मजबूती प्रदान करते हैं। तो और प्लेटलेट एंडोथेलियल सेल एडेशन मॉलिक्यूल, जिसको कि आप PCAM1 बोल देते हैं या CD31 भी बोल देते हैं, may be involved in leukocyte migration from the endothelial surface। अब क्या करेगा, जो माइग्रेशन होना है, जो अगला स्टेप है इसका, ठीक है, वो इसमें रोल प्ले करेगा, इसके इमिग्रेशन के अंदर जो है रोल प्ले करेगा। नाउ कमिंग टू दी नेक्स्ट, इमिग्रेशन पर हम आते हैं। मैंने शायद माइग्रेशन बोल दिया, इमिग्रेशन है जब यहाँ इतना काम हो गया कि ल्यूकोसाइट आकर चिपक गया, सब कुछ हो गया है, नीचे आपको गैप दिखाई दे रहा है दो एंडोथेलियल सेल्स के अंदर से, इसने इसके अंदर से बाहर जाना है, इसकी मदद कौन करेगा? इसकी मदद करेगा PCAM1 और दूसरा है CD31। अब बात करते हैं इमिग्रेशन की कि ये बाहर कैसे आएगा। लेट अस गो टू द थर्ड स्टेप, और थोड़ा सा बैक ले जाके आपको बता दूं कि हमने ये काम कर रहे हैं कि कैसे ल्यूकोसाइट बाहर आता है, ठीक है। चेंजेस इन द फॉर्म्ड एलिमेंट हमने देखा, उसके बाद रोलिंग एंड एडेशन देखा। अब बात की इमिग्रेशन की, जब आप दूसरे देश जाते हो तो आप कहते हो कि इमिग्रेशन हो गया, ठीक है। तो चलिए जी अब देखते हैं इमिग्रेशन कैसे होता है। अब देखिए जो गैप आपको यहाँ दिखाई दे रहा है इस डायग्राम के अंदर, रोलिंग एंड एडेशन हो रखा है, और जो मैंने आपको बताया आपका PCAM1 जिसको प्लेटलेट एंडोथेलियल सेल एडेशन मॉलिक्यूल, ठीक है, 1 जिसको PCAM1 बोलते हैं या CD31 बोल देते हैं, ये इन्वॉल्व होता है ल्यूकोसाइट को माइग्रेट कराने के लिए फ्रॉम दी एंडोथेलियल सरफेस, और जो नीचे जो आपको गैप दिखाई दे रहा है उसके माध्यम से ये इसकी सहायता करता है, ये यहाँ से निकल जाता है और हो गया जी इमिग्रेशन। तो कम टू एक्चुअल इमिग्रेशन। Immigration after sticking of neutrophils to the endothelium, the former move along the endothelial surface till a suitable site between the endothelial cells is found, where the neutrophils throw out cytoplasmic pseudopods। अब देखिए ये जो गैप मतलब क्या है, आप एक पॉइंट पर मत देखिए, पीछे से शुरू कीजिए। जो पहला स्टेप था किस तरीके से हुआ, कैसे प्लाज्मा जो है नैरो हुआ, उसके बाद में न्यूट्रोफिल नजदीक आया, फिर उनके बीच में आपका सिलेक्टिन्स ने रोल प्ले किया, फिर ये इंटीग्रेट हुए, फिर ये रोल करने लगा,
ठीक है, करते करते जहां एक्चुअल गैप मिलेगा और इधर CD31 या PCAM1 की तरफ से जैसे ही मदद मिलेगी, ठीक है, इस स्टिमुलेशन से ये बाहर निकलेगा। ठीक है, तो what I was telling you, after sticking of neutrophils to endothelium, the former move along the endothelial surface till a suitable site between the endothelial cells is found, where the neutrophils throw out cytoplasmic pseudopods. Pseudo माने झूठे, ठीक है, पोड्स माने हाथ पांव। मैंने तो इस ल्यूकोसाइट के 4 दिखा रखे हैं। ठीक है, तो सब्सिक्वेंटली द न्यूट्रोफिल्स लॉस्ट बिटवीन, लॉस्ट माने होता है रेस्ट करना या जगह बनाना या रुके होना। ठीक है, द सब्सिक्वेंटली द न्यूट्रोफिल्स लॉस्ट बिटवीन द एंडोथेलियल सेल्स। और दूसरा क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। आप अगर ध्यान दें, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर आपकी एंडोथेलियल लेयर है। ठीक है, कुल मिला के 4 बॉर्डर हैं यहाँ पर जिनको ये पास करेगा। सब्सिक्वेंटली द न्यूट्रोफिल्स लॉस्ट बिटवीन द एंडोथेलियल सेल्स एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन क्रॉस द बेसमेंट मेम्ब्रेन बाय डैमेजिंग इट लोकली विद सीक्रेटेड आपकी कोलाजिनेजेस एंड एस्केप आउट इनटू द एक्स्ट्रावास्कुलर स्पेस। जो एक्स्ट्रावास्कुलर स्पेस है मतलब बाहर की साइड आएगा, इसको हम कहेंगे दिस इज नोन एज द इमिग्रेशन। ये है इमिग्रेशन। एज ऑलरेडी मेंशन्ड, जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो डोमिनेंट होते हैं सेल्स इन एक्यूट इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट। जब एक्यूट है, एक्यूट का मतलब शॉर्ट लाइव्ड जो इन्फ्लेमेशन है, उसके अंदर जो मुख्य रोल है वो न्यूट्रोफिल्स का। मैंने आपको इम्यून सिस्टम की सेल्स डिस्कस की तब भी बताया। तो ये क्या करेंगे, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट इन फर्स्ट 24 आवर्स। पहले 24 घंटे में अगर एक्यूट इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट है तो उसके अंदर आने वाले सबसे पहले क्या है, न्यूट्रोफिल्स हैं। उसके बाद कौन आएंगे, मोनोसाइट मैक्रोफेजेस, अगले 24 से 48 घंटे में आएंगे। हाउएवर जो न्यूट्रोफिल्स का जो लाइफ है वो 24 से 48 घंटे ही होता है। उसके बाद क्या है, वाइल मोनोसाइट मैक्रोफेजेस आपके सर्वाइव मच लॉन्गर साइमल्टेनियसली जो टू इमिग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट। अब बात देने की जो बात है वो अगली इसके ऊपर आएगी आपका दिस वन, डायापीडेसिस। डायापीडेसिस क्या है, इसको पहले मैं आपको डिफाइन कर देता हूं। डायापीडेसिस कुछ नहीं है, द पैसेज ऑफ ब्लड सेल्स थ्रू द इंटैक्ट वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज अकम्पनिंग इन्फ्लेमेशन। जब इन्फ्लेमेशन की स्थिति है और आप देख रहे हो ल्यूकोसाइट बाहर जा रहा है, पीछे फायदा उठाकर ब्लड भी बाहर जाएगा और बाहर जाकर ब्लड सब उसको रेड करेगा, ऐसे लगेगा जैसे हेमरेज हो गया, एक हेमोरेजिक एनवायरनमेंट वहां क्रिएट कर देगा, उसको हम बोलते हैं डायापीडेसिस। ठीक है, तो बट आई वाज एक्सप्लेनिंग यू कि सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स जो है 24 घंटे तक जो है रिलीज होते रहते हैं। उसके बाद इनका लाइफ 24 से 48 घंटे ही होता है। फिर न्यूट्रोफिल्स का नंबर आता है, आपके मोनोसाइट माइक्रोफेजेस जो है वो लॉन्गर सर्वाइव करते हैं। अब जो आपका टर्म आ गया डायापीडेसिस, इसमें क्या है, साइमल्टेनियस टू इमिग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स एस्केप ऑफ रेड सेल्स। मतलब इसको सिर्फ एक वहां आप कहेंगे कि एक मौका मिल गया कि यहाँ जगह है और यहाँ से निकल चलो, इसीलिए इसको कहा है escape of red cells through gaps between endothelial cells. Diapedesis take place. It is a passive phenomena. मतलब ये कोई एक्टिव फिनोमिना नहीं है, जस्ट क्या है, आरबीसी बीइंग फोर्स्ड आउट आइदर बाय रेज्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। वहां सब कुछ स्वेलिंग हो रही है ना, सब कुछ फूला हुआ है, कितना प्रेशर पड़ रहा है उसके ऊपर। ठीक है, और मे एस्केप थ्रू एंडोथेलियल डिफेक्ट्स लेफ्ट आफ्टर इमिग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, कुल मिलाकर जहां से ल्यूकोसाइट पास हुआ है वहां कोई डिफेक्ट रह गया, या तो उसके पीछे पीछे निकल गया ये बाहर आपके ब्लड। ठीक है, इसी प्रक्रिया को हमने बोला डायापीडेसिस। आप अगर सिर्फ डायापीडेसिस मेंशन भी कर देंगे कि इसके बाद ये डायापीडेसिस फॉलोड बाय डायापीडेसिस, टीचर विल अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू से। ठीक है, लेकिन आपको टर्म थोड़ा पता होना चाहिए भी इसमें होता क्या है। इसमें एक प्रकार का ये परिस्थिति का फायदा उठाकर जो
ब्लड है वो पीछे पीछे ल्यूकोसाइट के बाहर चला जाता है, बस इतनी सी बात है। और अगर ये डिफेक्ट परमानेंट रह गया तो ज़्यादा चला जाएगा और बाहर जाकर एक अपीयरेंस, हेमोरेजिक अपीयरेंस इसके अंदर आ जाएगी। तो आरबीसी बीइंग फोर्स्ड आउट किस वजह से, कारण एक तो वहां होल रह गया था, दूसरा अगर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ गया है, सब स्वेलिंग है और वहां गैप रह गया है, तो उससे ये निकल जाएगा बाहर। ठीक है, फिर लास्ट इसका जो आपका स्टेप है दैट इज कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस क्या है कि कीमोटैक्टिक जो फैक्टर्स हैं उनका क्या रोल रहता है इसके अंदर, वी हैव टू सी दैट। नाउ कीमोटैक्टिक फैक्टर मीडिएटेड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स आफ्टर क्रॉसिंग सेवरल बैरियर्स। कितने बैरियर हैं? 4 बैरियर हैं। कौन कौन से हैं? आई हैव हाईलाइटेड हियर। इसमें सबसे पहले देखो एंडोथेलियम था, उसके नीचे की लेयर थी आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन था, उसके नीचे पेरिवास्कुलर मायोब्लास्ट थे और अंत में क्या है? मैट्रिक्स है। ये सब को क्रॉस करके इसने क्या करना है, जो इंटरस्टिशियल टिश्यू है वहां तक पहुंचना। किसमें? कीमोटैक्टिक फैक्टर के मीडिएटेड, मतलब उनकी माध्यम से यहां तक पहुंचना, इसी को कीमोटैक्सिस कहा गया है। I will repeat once again. The chemotactic factor mediated transmigration of leukocytes after crossing several barriers, जो 4 barriers हैं, to reach interstitial tissue is called chemotaxis. इसी को chemotaxis कहा गया। The concept of chemotaxis is well illustrated by बॉयडन चैम्बर एक्सपेरिमेंट। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बॉयडन, BOYDEN, बॉयडन चैम्बर एक्सपेरिमेंट, आप इसको गूगल कीजिए। ठीक है, उसमें आपको ये जो है बताया गया है किस तरीके से वहां ये जो कीमोटैक्सिक सब्सटेंसेस हैं या कीमोकाइंस हैं, ठीक है, वो अपना रोल प्ले करती हैं। तो अब कुछ हम इसमें मेंशन कर देते हैं कीमोकाइंस जो कि न्यूट्रोफिल्स के साथ ऐसा सहयोग करती हैं ताकि ये इंटरस्टिशियल स्पेस तक पहुंच जाए जो इसकी एक्चुअल मंजिल है। क्योंकि इसका रोल क्या है, इम्यूनिटी की सेल है ये, इसने वहां जाकर अपना रोल प्ले करना है। जो एंटीजन वहां है या जो माइक्रो वहां है उसको इसने जो है समेटना है। तो इसको जो सपोर्ट मिलता है कीमोकाइंस का, तो वो कौन कौन से हैं, या आप कहेंगे कीमोटैक्टिक सब्सटेंसेस लिकोट्राइन हो गए, जैसे LTB4 एक प्रोडक्ट ऑफ लिपोऑक्सीजनेज पाथवे ऑफ एराचिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स होता है, इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। फिर आपके आगे कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है, C5A एंड C3A इन पर्टिकुलर। फिर साइटोकाइंस आ गए, इंटरल्यूकिन्स आ गए, पर्टिकुलरली इंटरल्यूकिन 8 का एग्जांपल हम ले सकते हैं। उसके बाद सोल्यूबल बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स जैसे आपके फॉर्मुलेटेड पेप्टाइड्स हो गए। ऑल दीज आर द आपके क्या बोलते हैं इसको, कीमोकाइंस कह लो या कीमोटैक्टिक सब्सटेंसेस कह लो, विच प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। क्या रोल है इनका? इन्होंने वो 4 बैरियर क्रॉस कराने के बाद सेल्स को इंटरस्टिशियल स्पेस तक लेके आना है। ठीक है, नाउ अब आपको ये थोड़ा सा इवेंट्स जो हैं, ये एक बार मैं थोड़ा सा ये स्लाइड आगे पीछे हो गई है। आई विल स्टार्ट विद द फैगोसाइटोसिस, लेकिन इवेंट्स ऑफ एक्जुडेशन एक बार आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर ये 4 या 5 स्लाइड हमने जो देखी हैं तो एक के माध्यम से एक्सप्लेन करना होता तो ऐसे कर सकते थे कि ल्यूकोसाइट है, जो मैंने आपको बताया था आपका S. लेविस X मॉडिफाइड ग्लाइकोप्रोटीन, तो इसका नाम क्या है? जैसे मैंने आपको बताया था ये है सिलेक्टिन, ये सिलेक्ट करेगा भाई दोस्ती करनी है या नहीं करनी। इंटेग्रीन क्या करेगा? हाथ मिलाना है भाई, उसने जब सिग्नल दे दिया तो कर लो। अब क्या होगा आपका P सिलेक्टिन और E सिलेक्टिन, यहाँ जो दीज आर, अब देखिए ये जो ल्यूमन है जहां आपने ये लिखा दिख रहा है ना, रोलिंग शुरू हो गई है, अब ये रोल कर रहा है, ये वाल के साथ है। एंडोथेलियल सेल आपको दिखाई दे रही है, उसके नीचे बेसमेंट दिखाई दे रहा है और लास्ट में आप देखिए फिर ये रोल कर गया। ठीक है,
तो प्रोटियोग्लाइकान्स जो हैं, देन यू आर सीइंग द इंटेग्रिन हाई एफिनिटी स्टेट के अंदर आ गया अब यहाँ पर इंटेग्रिन लीगेंड आईकेम जो आपको बताया था मैंने, ठीक है, उसकी मदद से अब इनकी दोस्ती हो गई, ठीक है। अब एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इनके अंदर बन गया, किसके अंदर, ल्यूकोसाइट के अंदर और एंडोथेलियल सेल्स के साथ, और रोलिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि यहाँ प्लाज्मा सेल्स जो थी वो बहुत ही एक नैरो लेयर है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, इनको रास्ता मिला, पेवमेंटिंग मिली। अब फिर मैंने आपको बताया था PKM1 या CD31 की मौजूदगी में, ठीक है, ये जो है एस्केप करता है, इसको रास्ता मिलता है बाहर आने का, इमिग्रेशन का रास्ता मिलता है। क्लियर टू यू? नाउ यू सी हियर फिब्रिन एंड आपके फिब्रोनेक्टिन जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है यहाँ आ गया। अब कीमोकाइंस एक्टिवेट हो गए, कीमोकाइंस जो है आपके ये इनको इंटरस्टिशियल जो स्पेस है वहाँ ले आएंगे। फिर जो मैक्रोफेज है वो अपना आगे का काम शुरू कर देगा, इसने एनगल्फ करना है इसको, और अंत में जो साइटोकाइंस आपके TNF और ये आपके इंटरल्यूकिन 1 हो गया, उसके इन्फ्लुएंस में ये यहाँ इन सबको डिग्रेड कर देता है। क्लियर टू यू? नाउ ये आपके सारे स्टेप हैं, इवेंट्स हैं जो एक्सुडेशन के हैं। नाउ कम टू दी फैगोसाइटोसिस। तो भाई पहला तो आपको स्टेप ध्यान रखना है कि पहले के अंदर हमने इतना पढ़ा कि ल्यूकोसाइट कैसे बाहर आता है। अब बाहर आ गया तो वो करेगा क्या, इसने निगलना है किसको, जो एंटीजेनिक मटेरियल है या माइक्रोब है या जो भी एंटीजेनिक सब्सटेंस है उसको इसने निगलना है। नाउ द प्रोसेस ऑफ engulfment of solid particulate material by the cells, मेन टाइप ऑफ फेगोसाइटिक सेल्स जो इसके अंदर है PMNs होते हैं, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स होते हैं, जो अर्ली इन एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स हमने देखा सबसे पहले ये बाहर आते हैं, आल्सो नोन एज दी माइक्रोफेजेस। उसके बाद में आपके आगे मैक्रोफेजेस जो सर्कुलेटिंग मोनोसाइट्स हैं एंड फिक्स्ड टिश्यू आपके मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट्स हैं। उसके बाद में हमने देखा था कि दिस फेगोसाइटिक सेल जो रिलीज है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स को रिलीज करेगी। ये जो आप पहले भी बेसिक्स में पढ़ के आए हो कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जैसे लाइसोजाइम हो गया, प्रोटीएज हो गया, कोलाजिनेजेस हो गया, इलास्टेज, लाइपेज, प्रोटीएज, जिलेटिनेज एंड एसिड, कुल मिलाकर ये जब रिलीज होंगे मैक्रोफेज जब अपने अंदर ले लेगा उस खतरनाक सब्सटेंस को, उस एंटीजन को या माइक्रोब को, तो ये सारे के सारे उसको तोड़ देंगे, ठीक है। देन कम टू दी इवेंट्स ऑफ फेगोसाइटोसिस। ये हमारा फेगोसाइटोसिस है। द माइक्रोब की अगर हम बात करें कि माइक्रोब है, सपोज माइक्रोब अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस इन फॉलोइंग 3 स्टेप। ये 3 स्टेप बताए गए हैं, ठीक है। इसके माध्यम से ये जो है तो सबसे पहले है रिकॉग्निशन एंड अटैचमेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका ये आ गया एनगल्फमेंट आ गया, भी उसको उसने निगल लेना है, और तीसरा आ गया किलिंग एंड डिग्रेडेशन। तो थोड़ा सा बैक करके इसको देख लो आप। इसके अंदर क्या है IgG है यहाँ, ठीक है, जो कि प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है। ये आपके ऑप्सोनिन होता है। ये मतलब कुल मिलाकर आप ये कहिए कि जिस सब्सटेंस को ऑप्सोनिन्स क्या होते हैं, ये कुर्बानी के लिए तैयार करते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। जिसकी कुर्बानी होने वाली है ना उसको ये तैयार करते हैं, इसके चारों तरफ लेयर बना लेते हैं। और FC रिसेप्टर है एक। अब FC रिसेप्टर को थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, आप ऐसा करें, आप इमेजिन करें कि आपने अपना पंजा आपके मुंह के दूसरी तरफ कर लो, कोनी टेबल पर रख लो। अब आपका पंजा दूसरी तरफ है, अंगूठा अपना दबा लो, अंगूठे, अब आपकी 4 फिंगर दिख रही हैं, हाथ कोनी से लेके ऊपर दिख रहा है। अब कोनी से लेकर और आपकी रिस्ट तक जो है, इसको अगर मैं इम्यूनोग्लोबुलिन G का कहूं कि अगर आपने 4 शो करते हुए अंगूठे को छुपा लिया हथेली के, और जो इम्यूनोग्लोबुलिन G है आपकी कोनी से लेकर आपकी कलाई तक, ये FC इसको बोलते हैं, वो अपने क्रिस्टलाइजेबल फ्रेगमेंट किसका, इम्यूनोग्लोबुलिन G। ये जो एंटीबॉडी होती है ना, इसका स्ट्रक्चर होता है। अब मैंने कोनी से लेकर रिस्ट तक आपको ऐसा करने को इसलिए कहा कि ये इसका
एफसी रीजन है और दूसरे 2 आर्म है। अब यहाँ आप वाई बना दो ऊपर, वाई कैसे, 2 फिंगर एक तरफ और 2 फिंगर एक तरफ, तो बन गया वाई। ठीक है, तो यही इसका स्ट्रक्चर है। तो जो एफसी आपका रिसेप्टर है, ठीक है, इसने रिसीव करना होता है। इधर आपके आगे लेक्टिन्स, ठीक है, फिर आपका ये बैक्टीरियम है जो ऑप्सोनाइज्ड था, उसको यहाँ इन्होंने ले लिया। सूडोपोड्स मतलब नकली हाथ, जो साइटोप्लाज्म ही बाहर की तरफ और जो इसके अंदर जो फाइबर्स है ना वो बाहर बढ़ते हैं। इनको मौका मिला है क्योंकि जिसकी कुर्बानी देनी है उसको रेडी कर दिया ऑप्सोनाइज करके, और ये अंदर ले लेंगे। फिर इसको ये इसके अंदर फेगोसाइटिक वैक्यूल है एक वहाँ, ठीक है, उसके अंदर डाल देगा। एक डस्टबिन समझ लो आप वहां पर की है, उसके अंदर इसको डालेगा, खाली जगह है। और फिर क्या होगा, फेगोसाइटोसोम तैयार हो जाएगा। उसके बाद कुछ नहीं है, वो जो एंजाइम पीछे पड़ के आए वो सारे के सारे एंजाइम एक्टिवेट हो जाएंगे, इसकी हत्या कर देंगे। दैट इज द थिंग विच इज रिक्वायर्ड। अब हम आते हैं फर्स्ट स्टेप के ऊपर। अब इसको डिटेल में देखते हैं कि रिकॉग्निशन एंड अटैचमेंट कैसे होता है। जो मैंने आपको स्टोरी अभी सुनाई है सारी की सारी यही है कि phagocytosis is initiated by expression of surface receptor on macrophages which recognize microorganisms। इसको हमने बोला मैनोज रिसेप्टर एंड स्कैवेंजर रिसेप्टर। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ phagocytosis is further enhanced when the microorganisms are coated with specific protein, जिसको हमने क्या बोला है, ऑप्सोनिन्स बोला है, फ्रॉम द सीरम, सीरम से आते हैं ये, और दे गेट ऑप्सोनाइज्ड, मतलब उसके चारों तरफ उसको उन्होंने ऑप्सोनाइज्ड कर दिया, कवरिंग दे दी उसको। आपके ऑप्सोनिन्स एस्टैब्लिश अ बॉन्ड बिटवीन बैक्टीरिया एंड द सेल मेम्ब्रेन ऑफ फेगोसाइटिक सेल। द मेन ऑप्सोनिन्स प्रेजेंट इन द सीरम and their corresponding receptors on the surface of phagocytic cells, जिसको हम पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर आपके मैक्रोफेजेस हैं या मैक्रोफेजेस हैं, आर एज अंडर कौन कौन से हैं, IgG ऑप्सोनिन। अभी आपको बताया था आपने 4, आपके सामने कोई दोस्त है उसको 4 दिखाना है, हथेली उसकी तरफ हो जाए, टेबल के ऊपर आप अपना कौनी रख दो और उसको ऐसे 4 दिखाओ और कोशिश करो कि 2 उंगलियां लेफ्ट को और 2 राइट को हो जाए, वाई बन जाएगा। तो एफसी जो ये क्या है, मैंने आपको बताया था, आपकी कुहनी से लेके आपकी कलाई तक, रिस्ट तक का हिस्सा एफसी फ्रेगमेंट होता है। किसका, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, जो एंटीबॉडी होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी बोलते हैं उसको, एक एंटीबॉडी का प्रकार है ये। ठीक है, तो क्या है IgG, आपने डायग्राम में भी अभी पीछे देखा कि ऑप्सोनिन इज द एफसी फ्रेगमेंट ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन जी। इट इज द नेचुरली अकरिंग एंटीबॉडी। मैंने शुरू में भी कहा था आपको कि सीरम के बीच पाई जाती है। दैट कोट्स द बैक्टीरिया व्हाइल द पीएमएन्स possess रिसेप्टर्स फॉर द सेम। और जो आपके पीएमएन्स होते हैं उनके पास में इसके लिए रिसेप्टर होते हैं, तो बात बन गई। फिर था आपका C3b ऑप्सोनिन, जो फ्रेगमेंट होता है जनरेटेड बाय एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट पाथवे। इट इज स्ट्रांगली कीमोटैक्टिक फॉर अट्रैक्टिंग पीएमएनएस टू बैक्टीरिया। ये कीमोटैक्टिक है, मतलब ये क्या कहेंगे, एक छलावा है, उसने पीएमएनएस का जो है ध्यान दिलाना है, देखो जी वो बैक्टीरिया आ गया। ठीक है, देन इसके अंदर भी आप देखिए स्टेप बाय स्टेप एज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। ठीक है, IgG ऑप्सोनिन, फिर एफसी फ्रेगमेंट आ गया, लेक्टिन आ गया, बैक्टीरियम ऑप्सोनाइज्ड हो गया इसके अंदर। तो स्टेप बाय स्टेप इस तरीके ये बात आगे बढ़ रही है। अब फिर एक आपके लेक्टिन्स हैं, उनका क्या, कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं इन द प्लाज्मा। ठीक है, विच बाइंड टू द बैक्टीरियल सेल वॉल, उसके साथ वो बैक्टीरियल सेल वॉल के साथ बाइंड कर लेंगे। ठीक है, फिर आ गया एनगल्फमेंट, अब इसको निगलना है। ठीक है, कैसे निगला जाएगा, भी हम कह देते हैं कि नकली हाथ आते हैं, पाम आते हैं, तो कैसे ये फाइबर्स करेंगे इस अट्रैक्शन को, ऑप्सोनाइज्ड, उनको कुर्बानी के लिए तैयार मॉलिक्यूल मिल गया, अब तो पकड़ के अंदर लेना है बस उसको। ठीक है, द ऑप्सोनाइज्ड पार्टिकल बाउंड टू द सरफेस ऑफ फेगोसाइट इज रेडी टू बी एनगल्फ्ड, अब वो तैयार है निगले जाने के लिए। ठीक है, दिस इज एक्कम्पनीड बाय फॉर्मेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक आपके सूडोपोड। सूडोपोड का मैंने शुरू में कहा था, सूडो माने झूठे, पोड्स माने हाथ कह लो या पाम कह लो, जो आपको मैंने ग्लूकोसाइड के दिखाए थे। ठीक है, सूडोपोड्स अराउंड द पार्टिकल ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ एक्टिन फिलामेंट बीनेथ सेल वॉल। ठीक है,
एनवेलपिंग मतलब एक एनवेलप बना लेता है उसका, इट इन ए फैगोसाइटिक वैक्यूल, उसको वो वैक्यूल की फॉर्म में अंदर ले आता है। इवेंचुअली द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनक्लोजिंग द particle breaks from the cell surface so that membrane lined phagocytic vacuole or phagosome lies internalized मतलब कैद हो गया and free in the cell cytoplasm. The phagosome fuses with one or more lysosomes of the cell and form bigger vacuole called phagolysosome. और जब इसके साथ में आपका फ्यूज हो जाता है आपके लाइसोसोम के साथ, तो वो बड़ा आपको क्या कहते हैं, फैगोलाइसोसोम बन जाता है। अब किलिंग कैसे होगी, आपको बताया था, वो सारे के सारे प्रोटोलाइटिक जो आपके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम वो रिलीज होंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कम्स द स्टेज ऑफ किलिंग एंड डिग्रेडेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिस्पोज it of justifying the function of phagocytes as scavenger cells. स्कैवेंजर सेल्स जो उसको तहस कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे उसको। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आफ्टर बीइंग किल्ड बाय एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस आर डिग्रेडेड बाय हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो पीछे 8-10 नाम आप देख के आए हो। हाउएवर दिस मैकेनिज्म फेल्स। ध्यान देने की बात है आपके लिए, जो कल को आपके लिए ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, आपको ये ध्यान देने की बात है, जब हाउ एवर आ गया तो मतलब कुछ ना कुछ है यहाँ। दिस मैकेनिज्म फेल्स टू किल एंड डिग्रेड सम बैक्टीरिया लाइक ट्यूबरकल बैसिलाई। ठीक है, इस ट्यूबरकल बैसिलाई जो ट्यूबरकुलोसिस होता है ना, इसलिए कहते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस की जो बीमारी होती है उसका इलाज लंबा चलता है। और हमने इसको पीछे जो ग्रेनुलेटेड के अंदर क्लासीफाई भी किया था इन्फ्लेमेशन को, मैंने आपको बताया था, अभी इसमें ट्यूबरकुलोसिस आता है। अब ऐसे करके इसकी जो किलिंग हो जाती है, इसको जो है स्कैवेंजर सेल्स जो हैं उसको ख़त्म कर देती हैं। फिर हम इसमें एक्सेप्शन दे रहे हैं कि कुछ जैसे ट्यूबरकल बैसिलाई हो गया, या आपके वो कोड वाला जो वो है ना, क्या बोलते हैं उसको, लेप्रेई। ठीक है, ट्यूबरकल लेप्रेई बोलते हैं, वो भी जो है इस मैकेनिज्म से नहीं किल होता। डिस्पोजल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन प्रोसीड बाय फॉलोइंग मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म है, या तो इंट्रासेलुलर मैकेनिज्म, ये सारे के सारे प्रिंसिपल जो एनगल्फमेंट आपको मैंने अभी जैसे बताया किस तरीके से ये एनगल्फ होता है। ठीक है, दीज आर दी स्टेप्स, ऑप्सोनाइजेशन हो गया, लाइसिथेन हो गए, और ये सारी करके, ठीक है, फैगो आपके लाइसोसोम बन गया। नाउ कम टू दी किलिंग एंड डिग्रेडेशन। यहाँ सारे के सारे किलिंग कैसे होगी, अब हमने इसको जो है देखना है। किलिंग ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म टेक प्लेस बाय एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस फर्दर डिग्रेड बाय हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। समटाइम्स दिस प्रोसेस फेल्स टू किल एंड डिग्रेड सम बैक्टीरिया, जैसे मैंने ट्यूबरकुलोसिस का एग्जांपल लिया, और दूसरा कोड का, लेप्रोसी का। अब हम आते हैं भी उसको किल कर दिया, अब डिस्पोजल ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म करना है, कैसे होगा। कैन प्रोसीड बाय फॉलोइंग मैकेनिज्म, इसमें हम कर सकते हैं इंट्रासेलुलर मैकेनिज्म। इंट्रासेलुलर मैकेनिज्म्स में पहला होगा ऑक्सीडेटिव बैक्टीरियल मैकेनिज्म बाय ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स। अब आप ध्यान दो, आपने ऑक्सीजन फ्री स्पीसीज पीछे पढ़कर आए थे, आपकी सेल इंजरी में उनका क्या रोल है, आपने देखा था। जो ऑक्सीजन होती है वो इसके इन्फ्लुएंस में NADPH ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में जो ऑक्सीजन बस्ट बोलते हैं जिसको, आपके 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं वो 2 सुपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर सुपर ऑक्साइड जो है बाद में जाके हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। दैट यू हैव स्टडीड अर्लियर। नाउ आपने ये भी जाना था कि दीज आर द रिएक्टिव स्पीसीज, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है इसके लास्ट उसके अंदर, इसकी वजह से these are not considered good। ठीक है, तो आपका ऑक्सीडेटिव बैक्टीरियल मैकेनिज्म बाय ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स आ गया। अब ये कैसे होगा, ये या तो MPO डिपेंडेंट होगा, MPO का मतलब आपके माइलो पर ऑक्सीडेज डिपेंडेंट होगा, या फिर
एमपीओ इंडिपेंडेंट होगा, मतलब मैं आपके माइलो पर ऑक्सीडेज इंडिपेंडेंट। फिर सेकंड आपका जो मैकेनिज्म है वो ऑक्सीडेटिव बैक्टीरियल मैकेनिज्म बाय लाइसोसोमल ग्रेन्यूल्स हो सकता है। तीसरा मैकेनिज्म है नॉन ऑक्सीडेटिव बैक्टीरियल मैकेनिज्म हो सकता है। ये आपने ये तीन मैकेनिज्म जो हैं ये इंट्रासेलुलर हैं, ठीक है। किसके लिए? उसका डिस्पोजल के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, क्योंकि उसको मार दिया, डिग्रेड कर दिया, लेकिन उसको वहां से एलिमिनेट करना जरूरी है, अदरवाइज हीलिंग नहीं होगा, ठीक है। तो अगर इंट्रासेलुलर मैकेनिज्म होंगे तो ये तीन जो है मैकेनिज्म हो सकते हैं। एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है। तो लेट अस सी कि एक्स्ट्रा सेलुलर में ग्रेन्यूल्स और आपके इम्यून मैकेनिज्म्स आ जाते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंट्रासेलुलर मैकेनिज्म को अब हम अपन डिटेल में देखते हैं। किल माइक्रोब्स बाय ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म्स एंड लेस ऑफन नॉन ऑक्सीडेटिव पाथवे। अब रिकॉल करो, आपको जब मैं सेल इंजरी आपको पढ़ा रहा था उस समय मैंने कहा था ये जर्नल प्रिंसिपल है, आगे चलकर काम आने हैं, तो अब वो काम आ रहे हैं आपके। ऑक्सीडेटिव बैक्टीरियल मैकेनिज्म बाय ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स। यहाँ क्या है? प्रोडक्शन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन मेटाबोलाइट्स। कौन कौन से बताए थे आपको? सुपर ऑक्साइड बताया था आपको, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बताया था आपको, हाइड्रोक्सिल बताया था, फिर आपको HOCl, HOI, HOBr बताया था। इसको हम बोलते हैं आपका, वो क्या बोलते हैं, मैं उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे, हाइपोहेलाइड। हाँ, हाइपोहेलाइड बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो हाइपोहेलाइड होता है ये ज़्यादा ताकतवर होता है बजाय उसके ऑक्सीजन के ऑक्सीजन रेडिकल्स के, ठीक है। तो अब एक आपको रिएक्शन शो किया है मैंने यहाँ। एक्टिवेटेड जो फैकोसाइटिक ल्यूकोसाइट्स हैं दे रिक्वायर एसेंशियल प्रेजेंस ऑफ NADPH ऑक्सीडेज, और ये रिएक्शन आप पीछे जनरल प्रिंसिपल में करके आए हो, वही है सेम। 2O2 इज कन्वर्टेड इनटू आपके सुपर ऑक्साइड in presence of NADPH oxidase, right? Then present in the cell membrane of phagosome, ठीक है, that we have seen। उसके बाद में आपका MPO वाला आ गया, इंटरसेलुलर मैकेनिज्म। सुपर ऑक्साइड इज सब्सिक्वेंटली, आप जानते हो सुपर ऑक्साइड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, ये भी अपन पीछे देख के हैं सेल इंजरी में। फिर बैक्टीरियल जो एक्टिविटी है इज कैरीड आउट आइदर बाई एंजाइम माइलोपर ऑक्सीडेज MPO या MPO इंडिपेंडेंट। अब जो बैक्टीरिसाइडल मतलब बैक्टीरिया की जो हत्या हो रही है उसकी किस तरीके से हो रही है, या तो एंजाइम माइलोपर ऑक्सीडेज कहता है जी मैं इसमें हिस्सा लूंगा, या कहता है मैं हिस्सा नहीं लूंगा। अगर MPO डिपेंडेंट किलिंग है तो MPO एक्ट एज H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ हेलाइड्स, उसको बोलते हैं हाइपोहेलस एसिड। मतलब HO के साथ या तो क्लोराइड हो गया या आयोडाइड हो गया या ब्रोमाइड। ये बहुत ही खतरनाक होता है जब आपका माइलोपर ऑक्सीडेज जो है इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। इट इज वेरी डेंजरस एज कंपेयर टू इट्स एब्सेंस। MPO इंडिपेंडेंट जो किलिंग है, मैच्योर जो मैक्रोफेजेस हैं दे लेक द एंजाइम MPO, बैक्टीरिसाइडल एक्टिविटी बाय प्रोड्यूसिंग हाइड्रोक्सिल आयंस एंड सुपर ऑक्साइड सिंगलेट ऑक्सीजन, ठीक है। एक सुपर ऑक्साइड ड्यूलेट था जिसको O-2 बोलते हो आप। देन आपका हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जिसको हैवरविस रिएक्शन कहा था हमने, ठीक है। फेंटन रिएक्शन कॉल करो आप, ठीक है, यू हैव गॉन थ्रू दैट। तो इस प्रकार से जो इंट्रासेलुलर मैकेनिज्म है वो बैक्टीरिया का मायो आपका ये पर ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में या उसकी एब्सेंस में, दोनों केस के अंदर इसकी जो है हत्या कर देता है। लेट अस कम टू द नेक्स्ट आपका ऑक्सीडेटिव बैक्टीरियल मैकेनिज्म बाय लाइसोसोमल ग्रेन्यूल। तो यहाँ क्या है, इन दिस मैकेनिज्म द आपके प्रीफॉर्म्ड ग्रेन्यूल जो हैं दे आर स्टोर्ड प्रोडक्ट्स ऑफ न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस आर डिस्चार्ज, ये डिस्चार्ज हो जाते हैं और सीक्रेटेड इनटू द फैगोसोम, वो फैगोसोम के अंदर रिलीज हुए एंड एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट। वाइल द रोल ऑफ MPO इज ऑलरेडी हाईलाइटेड अर्लियर। हम जानते हैं कि जो MPO का रोल, ठीक है, ये प्रेसिपिटेट करता है स्थिति को। अदर लिबरेटेड बाय डिग्रेनुलेशन ऑफ मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स आर, यहाँ आ जाएंगे आपके प्रोटीएज, ट्रेप्सिनेज,
phospholipase and alkaline phosphatase. Now, progressive degranulation of neutrophils and macrophages along with oxygen-free radicals degrade proteins, that is induces proteolysis. मतलब प्रोटीन्स ब्रेक हो जाएंगे, प्रोटीन्स के बॉन्ड्स they would be converted into the amino acids. Now, non-oxidative जो बैक्टीरियल मैकेनिज्म है वो क्या है? Some agents जो released from the granules of phagocytic cells do not require oxygen for bactericidal activity. These include इसमें आप क्या आ जाएंगे, ग्रैन्यूल्स आ जाएंगे, जैसे some of liberated lysosomal granules do not kill by oxidative damage but cause lysis within phagosome. ठीक है, वो उसको लाइज कर देते हैं. These are lysosomal hydrolysis, मतलब उनके बॉन्ड ब्रेक कर देंगे. नो परमिएबिलिटी इंक्रीजिंग फैक्टर्स, कैटायनिक प्रोटीन्स हो गए जिसको हम आपको डिफेंसेंस बोलते हैं, लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, डीएनएजेस, मतलब सारे बॉन्ड्स को जो है ये ब्रेक करते हैं. तो फिर आपका इस तरीके से जो ग्रेन्यूल्स हैं हमने देखा, डिग्रेनुलेशन ऑफ मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स, और आपके इम्यून मैकेनिज्म जो है इम्यून मीडिएटेड लाइसिस ऑफ माइक्रोब्स टेक प्लेस आउटसाइड द सेल्स बाय मैकेनिज्म्स ऑफ साइटोलाइसिस, एंटीबॉडी मीडिएटेड लाइसिस, ठीक है, एंड बाय सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी. तो मैंने जैसे आपको शुरू के अंदर ही बताया था कि जो अपने टी हेल्पर सेल्स हैं उसमें CD4 सेल्स हैं, वो एनहांस करती हैं इम्यून रिएक्शन को, और टी सप्रेसर सेल जो CD8 हैं वो सप्रेस करती हैं इम्यून रिएक्शन को, बट आर डायरेक्टली साइटोटॉक्सिक टू एंटीजन. तो ये देखिए एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर ये मैकेनिज्म हो रहा है. तो आप इसके लिए थोड़ा सा धैर्य रख के पेज नंबर 4 और 5 के ऊपर जो मैंने आपको टेबल दिया है वहां इम्यून सेल्स का रोल अपने दिमाग में बिठा लो. इट विल बी सो सिंपल. नाउ अब फाइनली हम इसको सम अप करते हैं. स्टेजेस ऑफ फैगोसाइटोसिस, तीनों स्टेज को ये देखिए किस तरीके से फैगोसाइटिस आपका रिसेप्टर हो गया, इसको ये एनगल्फमेंट हो रहा है. पहले में क्या था, फर्स्ट स्टेज क्या थी, यू वर सीइंग द रिकॉग्निशन एंड अटैचमेंट हो गया, उसके बाद इसका एनगल्फमेंट हो गया. फिर आप देखिए जो आपके फैगोसोम है उसने क्या किया है, इस जो माइक्रोब है अपनी कैद में ले लिया. उधर लाइसोसोम्स जो है वो एंजाइम्स के साथ हैं. अब ये दोनों का यूनियन हो गया, इसको आपने बोल दिया फैगोलाइसोसोम. अब यहाँ एंजाइम रिलीज हो गए, इन्होंने इसको जो जितने बॉन्ड है सबको ब्रेक करके और जितने मैकेनिज्म इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर मैंने अभी आपको करवाए हैं, ठीक है, उनके माध्यम से इसका डिग्रेनुलेशन हो जाएगा और डिग्रेडेशन ऑफ माइक्रोब्स बाय लाइसोसोमल एंजाइम इन फैगोलाइसोसोम हो जाएगा, और वही हमें रिक्वायर्ड है. इसी को हम किलिंग एंड डिग्रेडेशन बोल देते हैं. और नेक्स्ट जो है आउटकम क्या है, व्हाट इज द आउटकम, इतना लंबा हमने डिस्कशन किया. व्हाट इज द आउटकम ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन, तो या तो जख्म जल्दी ठीक हो जाएगा या फिर ठीक नहीं होगा और क्रोनिक स्टेज में चला जाएगा. आउटकम यही होगा. तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिस्टोरेशन टू नॉर्मल. जो परिस्थिति खराब हुई थी वो नॉर्मल होगी, लिमिटेड इंजरी थी, केमिकल सब्सटेंसेस जो है, ठीक है, वो न्यूट्रलाइज हो गए हैं. नॉर्मलाइजेशन ऑफ वास्कुलर परमिएबिलिटी हो गया, एपोटोसिस ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स हो गया, जो लिम्फेटिक ड्रेनेज था, ठीक है, वो भी व्यवस्थित हो गया. फिर हीलिंग शुरू होगी. हीलिंग जो होती है एक्यूट इन्फ्लेमेशन में वो बाइस्कार होती है. इसको आप सीधा सा कहें कि मान लो किसी के पेंसिल लग गई आर्म के अंदर, तो फिर ये क्लॉट हो जाता है और बाहर जो आपको जो क्या कहते हैं वो मैंने कौन सा आपको बताया था, नेक्रोसिस, आपके जो नॉट एबल टू रिकॉल, जो आपका पनीर की तरह लुक देता है आपको, ठीक है, नॉट एबल टू रिकॉल एट दिस टाइम. देन टिश्यू आपका डिस्ट्रक्शन हुआ. देन आपका फाइब्रोनस इन्फ्लेमेशन, देन पुरुलेंट इन्फ्लेमेशन, एब्सेस फॉर्मेशन. एब्सेस मतलब आप कहिए कि फोड़ा सा बन गया जैसे, ठीक है, और फोड़ी के अंदर क्या होता है, पस होती है, पायोजेनिक मेम्ब्रेन होता है, रिसॉर्प्शन होता है, सूडोजेंथोसोमा सेल्स होती हैं. ये एक
हफ्ते से महीना लग सकता है। ठीक है, तो ये देखिए पहले क्या हुआ, रिस्टोरेशन हुआ, फिर हीलिंग हो गया। अब मान लो हीलिंग नहीं हुआ, एक्यूट इन्फ्लेमेशन में इतना सब होने के बाद वो ठीक नहीं हुआ, तो क्या होगा, प्रोग्रेशन होगा इनटू क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। उसके बाद ये परिस्थिति गड़बड़ हो जाएगी और वो हम आगे पढ़ेंगे आपका क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। ठीक है, अब हम आते हैं, ये इवेंट्स हैं सारे के सारे। ब्लड वेसल था, मोनोसाइट जैसे ही बाहर आता है। ठीक है, और यू आर सीइंग मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, दे आर कमिंग आउट। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये नेक्रोटिक टिश्यू या जितने भी माइक्रोब्स हैं उनका एनगल्फमेंट करना है। फिर ग्रोथ फैक्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और नियोवास्कुलर बंडल बनने शुरू हो जाते हैं, नियोवास्कुलेशन। ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट, ये आपको मैंने वो बताया था, उसका एंजाइम का नाम बताया था ना, बट वाज द नेम ऑफ नॉट एंजाइम, फैक्टर। उस फैक्टर का नाम था VEGF। ठीक है, मतलब वास्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर। ये क्या करता है, अपने निर्माण करता है नए ब्लड वेसल्स का, जियो नियोवास्कुलेचर बोला ग्रोथ फैक्टर्स की प्रेजेंस में। ऊपर आपने देखा फ्लूइड एंड प्रोटीन्स बाहर आ रहे हैं, दे गो इनटू द लिम्फेटिक वेसल्स। फिर ड्रेनेज, जो लिम्फेटिक वेसल्स में जब आ गए तो ड्रेनेज ऑफ ऑडेमा फ्लूइड एंड प्रोटीन इनटू लिम्फेटिक्स के अंदर हो जाता है, फिर वापस फॉर्मेशन, वो सारी चीज जो होती है। ठीक है, और धीरे धीरे जो है ये स्थिति आपकी आइदर एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर मैकेनिज्म के माध्यम से ये हीलिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। ये ध्यान देना है कि जैसे इन्फ्लेमेशन खत्म होने को है, उससे थोड़ा सा पहले हीलिंग शुरू हो जाता है। यू कैन रिमेम्बर इट लाइक दैट। उसके बाद में क्लिनिकल एग्जांपल हैं ल्यूकोसाइट इंड्यूस्ड इंजरी। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स, इसमें से एक दो हम देख लेते हैं। मान लो अस्थमा की बात करते हैं भी, अगर अस्थमेटिक पेशेंट है उसके अंदर अगर ऐसी इंजरी है एक्यूट, तो इजिनोफिल्स और इम्यूनोग्लोबुलिन ई एंटीबॉडीज हैं, इनका रोल रहेगा और ये सारा प्रोसेस चलेगा। फिर हम बात करते हैं क्रोनिक में आर्थराइटिस और अस्थमा के दो एग्जांपल लेते हैं। अगर आर्थराइटिस का केस है तो लिम्फोसाइट्स हो गए, मैक्रोफेजेस हो गए और एंटीबॉडीज, इनकी इन्वॉल्वमेंट है। और अगर हम बात करते हैं अस्थमा की, तो यहाँ इजिनोफिल्स और अदर ल्यूकोसाइट्स, IgE एंटीबॉडीज, इन सब ने अपना रोल प्ले करना है। इसी प्रकार अगर आप चाहो तो पल्मोनरी फाइब्रोसिस की बात कर लो। ठीक है, तो वहाँ मैक्रोफेजेस इन्वॉल्व होंगी और फाइब्रोब्लास्ट इन्वॉल्व होंगे ताकि सेल इंजरी को करेक्ट किया जा सके। ठीक है, और ये जब शुरू हो जाएंगे उसके बाद इन्फ्लेमेटरी आपका रिस्पॉन्स इंड्यूस हो जाएगा, जो अभी हम कवर करके आए हैं। एंड इसके साथ हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है केमिकल मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, जो हमने नेक्स्ट के अंदर लेना है। इसके लिए रॉबिन्सन्स बेसिक पैथोलॉजी रेफर की गई है, हर्ष मोहन का जो टेक्स्ट बुक ऑफ पैथोलॉजी रेफर किया गया 6th एडिशन, और कलर एटलस ऑफ आपका पैथोलॉजी जो है, ये तीनों लाइब्रेरी में अवेलेबल है, आप वहाँ देख सकते हैं।